एनी डाउट्स बेटा? लास्ट लेक्चर नोट्स हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे, कोई बताएगा बेटा? लास्ट लेक्चर में व्हाट वाज द लास्ट पार्ट? सर रूट वर्ड्स करे सर, रूट वर्ड्स सर रूल्स कर रहे थे। रूल्स में क्या क्या लिख लिया था, कुछ आप मेरे को गाइड करो बेटा। सेकंड रूल तक लिख लिया था। हाँ, जो ऐसे नहीं होता रूट है, वर्ड्स वो अलग अलग बैच वाइज पढ़ाना होता है ना, तो सर एक सेकंड। आप मुझे कुछ रीड करके बताओगे तो समझ में आएगा। So the last rule was on the basis of number of carbon atoms present in the main chain, we decide the root word, and then you gave the prefix for every till like 20. अच्छा, वो मैंने आपको बताया होगा, मैथ प्रोब्यूट लाइक दैट, है ना? Yeah, sir. ओके ओके, करेक्ट, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए, एक तो वो पार्ट हो गया। देन यू राइट नेक्स्ट रूल बेटा। सर। यस सर, can you please say the difference between root word, parent chain and main chain? रूट वर्ड, पेरेंट चेन एंड मेन चेन, वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? मींस पेरेंट चेन में कितने कार्बन होंगे उससे अपन रूट वर्ड निकालेंगे ना फिर। यस, परफेक्ट परफेक्ट। एनी अदर कंफ्यूजन और शुड आई स्टार्ट? सर हमें Parent कार्बन आइटम देंगे मैक्सिमम कितने? से बेटा? व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पेरेंट चेन जो व्हिच विल बी गिवन टू अस? ऐसा वो नहीं है कोई फिक्स्ड, लेकिन नॉर्मली दे आस्क क्वेश्चंस विद इन 20। ओके सर। सर पेरेंट चेन और मेन चेन ठीक है, विद इन 10 पूछते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम विद इन 10। डन बेटा? सर पेरेंट चेन और मेन चेन आर द सेम थिंग ना? अभी तो यही पूछा तुमने, व्हेन आई सेड यस, फिर ओके हो गया, फिर सेम क्वेश्चन यू आर आस्किंग। No, because someone told question I couldn't hear. Okay. और कोई कंफ्यूजन बेटा? चलो, नेक्स्ट रूल लिखिएगा बेटा, लिखिएगा। नंबरिंग इज डन, नंबरिंग इज डन नंबर, दोस्त हैव जॉइंड लेट, नो इश्यूज, हमने यहीं से शुरू किया बेटा, अभी लोग डाउट्स पूछ रहे थे अपने। नंबरिंग इज डन फ्रॉम एंड टू एंड, एंड टू एंड, ये माइंड में रखना बेटा, ठीक? नंबरिंग इज डन एंड टू एंड, full stop. The carbon atom which is directly attached, the carbon atom which is directly attached to substituent, the carbon atom which is directly attached to substituent gets lowest possible number, gets lowest possible number, और ब्रैकेट में लिख देना बेटा लोएस्ट नंबर रूल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? लोएस्ट नंबर रूल, ब्रैकेट क्लोज्ड। So can you just repeat? I said write in the bracket lowest number rule. So can you repeat the sentence? कोई बेटा रिपीट करेगा बच्चे के लिए? Anyone? Numbering is done from end to end. The carbon atom which is directly attached to the substituent gets lowest possible number, lowest number rule in brackets. Very good बेटा। So can somebody repeat the last sentence? So can you just say after end to end? Somebody? The carbon which is directly attached to the substituent gets the lowest possible number. चलिए, सबने लिख लिया? अच्छा, एक और बात, हैव यू ऑल ज्वाइंड दैट व्हाट्सएप ग्रुप बेटा?
केमिस्ट्री वाला Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसको कंटिन्यूएशन में लिखो. Somebody was writing in the chat box, so I got disturbed. लिखिएगा. When many substituents are present, same rule है continuation में. When many substituents are present, then numbering is done. From the end where summation of locands is lowest. Sir, can you repeat? Sir, locants का spelling क्या? Look at the screen, beta. I repeat this whole note. Yes, की TS है. नोट मतलब जहां से अभी substituents. When many substituents are present, then numbering is done. When many substituents are present, then numbering is done from the end where the summation of locands is lowest. Where the summation of locands, sum of the locands, SUM, summation of the locands is lowest. Look at the screen. Bracket पे लिख देना lowest sum rule. Sir, can you repeat again? कोई बेटा रिपीट करेगा इसके लिए? Anyone? When many substituents are present, then numbering is done from the end where summation of locands is lowest in brackets lowest sum. Thank you. Have you all written the rule, beta? Should I take the example, beta? किसी का रोल छूट तो नहीं गया है? Am I not audible? Sir, you are audible. Oh. चलो देखो बेटा. CH3, CH2, CH2, CH, Cl, CH. If you see this example, ये बड़ा एकदम बेसिक एग्जाम्पल है बेटा. इसमें ऑफ कोर्स जो स्ट्रेट चेन आपको ये दिखते, यही अपनी मेन चेन पेरेंट हो जाएगी. यू ऑल एग्री बेटा? सर राइट से करेंगे ना नंबरिंग. एंड नंबरिंग कहाँ से करेंगे बेटा? यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5. Why are you doing numbering like this? Because CL gets lowest possible number. Numbering तो end से end ही होगी. Okay, numbering is from one end to another end. But you have selected this side for numbering because from here Cl carbon gets lowest possible number. इसको copy कर लो. Sir, वो substituent क्या है? सब्स्टिट्यूएंट Cl लिखा है बेटा. अभी सब सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में मैंने बताया था क्या बेटा लास्ट लेक्चर में? सब्स्टिट्यूएंट्स का लिस्ट. यस सर बताया. यस सर. क्लोरोब्रोमो सब दे चुका हूँ. यस सर. Yes, sir. सर व्हाट इज लोकेंड्स? आई थॉट मैंने दिया नहीं है. कोई लिख लो उसको. बेटा ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. Sir. Hello. कुछ कह रहे हो? Sir, in this case, numbering can be done from any side, na? No, it depends on. It depends on functional group and non-functional group, right? Cl will come first. Functional group है.
फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया ही नहीं बेटा अभी। हमने क्या लिखा है स्टार्टिंग में? दीज रूल्स आर वैलिड ओनली इफ देयर इज नो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप। कैन यू सी रूल्स के पहले लिखा है सबने बेटा? Yes. तो फिर अभी फंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन रेज नहीं होता, उस पे हम बात ही नहीं करते। जिसको तुम फंक्शनल ग्रुप समझ रहे हो वो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है? आई विल गिव द लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, डोंट वरी। Sir, in this case, the parent chain is equal from both the sides, so numbering can be done from any side, na? आते हैं बेटा, उसी 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 पे आते हैं, उसी पे आते हैं, थोड़ा सा वेट करना है, उसी पे आते हैं, ठीक है? इस वाले में आप देख रहे हो, जैसे बच्चे ने बोला 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया, 7। तो यहाँ से आप देखोगे तो थर्ड को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, मतलब CS3 को इधर से करेंगे अगर हम लोग तो भी आपका लोवेस्ट नंबर जो है पहले सब्स्टिट्यूएंट को 3 मिलता है, ठीक? तो फिर दूसरा रूल क्या अप्लाई करेंगे बेटा? समेशन ऑफ लोकेंड्स। इधर से समेशन ऑफ लोकेंड देखा तो कितना आया? 3 + 4 + 5 कितना आया? 12। इधर वाले से गए तो समेशन ऑफ लोकेंड्स कितना आया? 3 + 4 + 5 कितना आया? 12। यानी कि यहाँ पर लोवेस्ट नंबर रूल फेल हो गया, और क्या फेल हो गया? लोवेस्ट सम रूल। यानी कि ये दोनों फेल हो गए, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा देना है। इधर से आप देखोगे तो मिथाइल आता है, और इधर से देखते हो तो क्या आता है बेटा? क्लोरो। तो फिर हमको अल्फाबेट लेना है। क्या सारे बच्चे समझ गए? तो बताइए नंबरिंग कौन सा लोगे आप, ग्रीन वाला की रेड वाला? विच वन विल यू कंसीडर? ग्रीन वाला। ग्रीन वाला की रेड वाला? ग्रीन। ग्रीन वाला। ये वाला कंसीडर करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो ये 2 एग्जांपल्स में लगभग सब कवर हो जाता है। आप कॉपी कर लो बेटा। सर लोकेंड्स है क्या और एग्जैक्टली? लोकेंड्स बेटा इन नंबर्स को बोलते हैं जो लोकेशन को बताते हैं। लोकेंड्स क्या बताते हैं बेटा? टेल अस अबाउट पोजीशन। पोजीशन जैसे Cl की पोजीशन, इथाइल की पोजीशन, मिथाइल की पोजीशन। इज इट क्लियर? हाँ सर, और वो समीशन कैसे कैलकुलेट किया? उनके नंबर्स को सम कर दिया केवल। थर्ड पे Cl है, फोर्थ पे इथाइल है, फिफ्थ पे मिथाइल है, समेशन ले लो। इधर भी इसी तरह लिया। इन दोनों में देखा कोई कम है क्या, तो नहीं, इक्वल निकला, तो यानी वो रूल भी गड़बड़ हो गया। फिर अल्फाबेट चेक कर लो। ठीक है सर। तो समेशन ऑफ लोकेंड्स सेम होगा कि मतलब डिफरेंट हो सकता है? डिफरेंट होगा ही ना, कई कई केसेस में डिफरेंट होगा। तो जहां डिफरेंट होगा वहां पर हम क्या ले लेंगे बेटा? जिसका समेशन क्या आ रहा हो? लोवेस्ट आ रहा हो, मिनिमम आ रहा हो। So sir, here if we remove Cl, then we'll have to add 5 + 4 and then 3 + 4, right? And then we'll take from the left side, right? Yes. If we remove Cl, okay. If we remove Cl. सर दोनों अगर पॉइंट फेल हो तो क्या करने का? आपने बोला लोवेस्ट नंबर फेल हो रहा है और लोवेस्ट नंबर फेल हो रहा है, तो क्या करने का फिर? अल्फाबेट बेटा स्क्रीन पे देखो ना, लिखा तो है। अल्फाबेट समझ रहे हो? CH का C और मिथाइल का M। सर अगर दोनों तरफ CH3 या Cl होता तो फिर कोई भी साइड से ले सकते हैं ना? हाँ। Should I remove this beta? Have you all copied everything? 1 minute sir. अब बेटा कई कुछ लोग लेट ज्वाइन किए, कोई फोटो क्लिक डाल सकता है जो मैंने लिखा है? पिक्चर क्लिक करके आप इसमें डाल दो, क्या बोलते हैं, ग्रुप में, केमिस्ट्री का जो ग्रुप है। और बेटा यहाँ पोस्ट करने से बेटर है आप ग्रुप में डालो ना, वहां पूछ लो, तो कोई ना कोई बच्चा जो अच्छा होगा वो डाल देगा, ठीक है? बिकॉज आई टेक लेक्चर्स फ्रॉम लैपटॉप ना, तो आई कैन नॉट पोस्ट इमीडिएट। वो आप किसी बच्चे से बोलेंगे तो तुरंत डाल देगा। Should I remove this? Sir, what do you mean by alphabet over here?
कोई बताएगा बेटा अल्फाबेट का क्या मतलब होता है? Alphabetical order. C comes before M. So that is why. Okay, got it. हो गया बेटा, हटा दें इसको। Sir, CH3, C2, H5, these also are substituents only, no? यस, CH3 C2H5 ये सब सब्स्टिट्यूट यानी प्रीफिक्स है। सब्स्टिट्यूएंट से बेटर वर्ड क्या है बेटा? प्रीफिक्स। तो सर अभी वो क्लोरो का क्या करने का, फिर हमको क्लोरो मिल गया। पूछ क्या रहे हो, यही समझ में नहीं आ रहा मुझे। पूछ क्या रहे हो? तुमने किसी को, ये दोनों में फाइंड क्या कर रहे हैं सर? हम केवल ये डिसाइड करें नंबरिंग किधर से करें, इसके अलावा कुछ नहीं किया अभी हमने। हो गया बेटा, आगे बढ़े। यस सर। Yes. Sir, could you repeat once again? I was disconnected. क्या चीज रिपीट करना है? Sir, ये जो अभी आपने कराया। या अभी और भी एग्जांपल्स लेंगे ना, बहुत देर से इसका डिस्कशन चल रहा है बेटा। Sure, sir. ठीक है, चलो अभी इसमें नेक्स्ट रूल लिखो बेटा। एंड प्लीज नोट ऑल दीज रूल्स आर फॉर द केसेस वेयर you do not have any double bond, triple bond or functional group. लिखिएगा, if there are two or more, if there are two or more similar substituents, if there are two or more similar substituents attached to the parent chain, if there are two or more similar substituents attached to the parent chain, then their positions are indicated. Their positions are indicated separately. Their positions are indicated separately by prefixes di, tri, tetra, penta, etc. सर वो सेपरेटली के बाद क्या था? Separately by prefixes like di, tri, tetra, penta, etc. Look at the screen. I have written. But if the name of side chain already includes di, tri, then to avoid confusion, we use, look at the screen, bis, tris, tetrakis, etc. So what's the first word you've written? BIS beta. BIS. Second one is TRIS. Then TETRAKIS.
Sir, is this rule 4 or rule 3 is continued? This is rule for what? Rule 4 or rule 3 is only continued. This is perhaps rule 4, I think. आप देख लो. Separate rule था मतलब. Yes, sir. Rule 4. Yes, yes. हो गया बेटा? Should I remove this? Guys, now please listen carefully. Every IUPAC name is made up of, yeah, you can say contains 4 parts. One we call as locand, one we call as prefix, one we call as root word. ये मैंने लिखाया था क्या बेटा? No, sir. Yes, sir. One we call as suffix. Within suffix, we have primary suffix, and one we call as secondary suffix. ठीक है? ये कॉपी करो और सबके लिए एक एक नोट लिखो बेटा, एवरीवन. सर रूल नंबर के 4 के बाद लिखना है ना? हाँ, कंटिन्यू में. कंटिन्यूएशन. सबके लिए एक छोटा छोटा नोट लिखाऊंगा. सर आपने पहले वाले नोट्स का एग्जांपल नहीं दिया ना? पहले वाले के लिए अभी सारे एग्जांपल्स लेंगे बेटा. रूल्स मिक्स्ड वे में चलते हैं. बहुत ही सेपरेट कुछ करना भी उतना आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे. तो लेट मी इंट्रोड्यूस दिस टर्म्स फर्स्ट एंड देन आई विल टेक एग्जांपल. ये नोट बोलना शुरू करो बेटा. आपने फ्लो चार्ट बना लिया इस तरह का. डन? Yes, sir. सो पहले इसके लिए लिखिएगा लोकैंड के बारे में. It tells us about positions of. It tells us about positions. Your voice is cracking. Is it so? It's not, sir. No, sir. It is. No, sir. It happens sometimes. Don't worry बेटा. वो अगर continuously हो रहा हो तो आप बोलो. नोट कंटिन्यू करता हूं मैं लोकैंड के लिए. It tells us about the position of prefix, primary suffix, and secondary suffix. It tells us about the position of primary suffix, prefix, primary suffix, secondary suffix. ध्यान से देखो, इसकी पोजीशन, इसकी पोजीशन, इसकी पोजीशन. क्या समझ गया बेटा? नोट लिख लिया आपने? Sir, can you repeat? कोई रिपीट करेगा बेटा इसके लिए? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. It tells us about the positions of prefix, primary suffix, and secondary suffix. Very good बेटा. Done बेटा. सबने लिख लिया? Should I tell you note for prefix? Yes, sir. Please write. Yes, sir. Prefix means, देखो नाम से ही पता चला prefix है ना. So prefix means side chains and substituents. Side chains and substituents. बस इतना लिखना है. Side chains and substituents. सर साइड चेंज के पहले क्या था? पहले तो कुछ नहीं बोला मैंने. साइड चेन्स एंड सब्स्टिट्यूएंट्स. रूट वर्ड के लिए लिख लीजिएगा बेटा.
Root word is decided by number of carbon atoms in the parent chain. Root word is decided by number of carbon atoms in the parent chain. लिख लिया बेटा? Already I gave you different root words. ठीक है? So no need to write those. Root word is decided by number of carbon atoms in the parent chain. लिख लिया बेटा? Sir, in note for physics, prefix we just have to write side chain and substituents, na? Yes. Prefix के लिए note बोले बेटा? सर प्रीफिक्स का हो गया ना? Yes, sir. Sorry, primary suffix. Extremely sorry. Primary suffix. लिखिएगा. Primary suffix is used. Primary suffix is used to indicate. Primary suffix is used to indicate saturation or unsaturation. Primary suffix is used to indicate saturation or unsaturation in the parent chain. Saturation or unsaturation in the parent chain. लिख लिया बेटा? Yes. और यहाँ लिख देना ANE, ENE, YNE. These are the three primary suffixes. ANE, ENE, YNE. These are the three primary suffixes. लिख लिया बेटा? Should I give you note for secondary suffix? Yes. sir. Yes, sir. देखिएगा, secondary suffix is used for principal functional group. Secondary suffix is used for principal functional group. Look at the screen. Spelling सही लिखना है बेटा. PAL लिखिएगा. Principal functional group. So can you repeat? Secondary suffix is used for principal functional group. Principal functional group. Okay, बेटा? Now you write. If principal functional group. Is it the continuation of secondary suffix? Yes, continuation है. या फिर ऐसा लिख दो. If secondary suffix starts with. A, E, I, O, U and Y. Vowel and Y. If secondary suffix starts with A, E, I, O, U and Y, then remove E of primary suffix. लिख लिया बेटा सबने? Sir, can you repeat after that? If secondary suffix starts with A, E, I, O, U and Y, vowel and Y, then remove E of primary suffix. Sir, the E of the or the last E or the first one for in? I will explain बेटा. इतने तक लिख लिया आप सबने?
गाइस ध्यान से देखो स्क्रीन पर. I have written a compound and I have written IUPAC name. I am not saying कि IUPAC name आपको आना चाहिए. I have not given you complete rules. आप अभी IUPAC name आप कैपेबल नहीं होगे. ज्यादातर बच्चे जिनको पहले से आता है इट्स गुड, जिनको नहीं आता वो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखें. What I am telling you here is, in every IUPAC name I have said you may find these parts. 5 is locant. Locant of what? Prefix. NO2 is what? Prefix. Hex is what? बताइए बेटा. Root word. Root word. Root word. This 3 is what? Locant. Locant of what? Primary suffix. Primary suffix. ये en क्या है? Functional group. No, primary suffix. And you can see its e we have removed. क्या देख पा रहे हो? कोई बताएगा क्यों remove किया होगा? So as to Because there's accommodate a the vowel. secondary suffix. Secondary suffix starts with o. That is why we have removed e of primary suffix. So whatever notes you have written before that, you can relate all the points with this example. I'm not saying example का IUPAC name तुम्हें आना चाहिए, but क्या तुम break कर पा रहे हो वो जो 4 parts हैं? If yes, then it's good. इतना copy कर लो बेटा. सर बट इसमें आ गया ना, तातों को डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए. क्या बेटा? इसमें डबल बॉन्ड आ गया ना तो चलता है क्या? मतलब डबल बॉन्ड नहीं चाहिए था अपने को रूल्स में. तो किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी होगा, फंक्शनल ग्रुप भी होगा, बट इससे पहले जो हमने रूल्स लिखे थे उन रूल्स को तभी मैं मानेंगे जब वहां डबल ट्रिपल नहीं होगा. तो मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ बेटा तुम IUPAC नेम लिख लो अभी से. मैं बोल रहा हूँ IUPAC नेम मैंने लिखा और जो मैंने इसके पहले पेज में तुम्हें एक्सप्लेन किया, क्या वो पार्ट्स तुम्हें नजर आ रहे हैं? बस इतना. यस तो बस खत्म. उसके आगे मैं खुद समझाऊंगा. Sir, यस बेटा. sir, 5 should be locant of the substituent and 3 should be locant of double bond. यस परफेक्ट. डबल बॉन्ड को हम लोग यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं क्योंकि वो ENE एल्कीन से आया है ना, EN उसको रिप्रेजेंट करता है, और नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट है जिसको प्रीफिक्स बोलते हैं. अच्छा, ओके सर. ठीक है. सर और बोलो. मतलब आपने वो नेम निकाला वो बताएंगे कैसे निकाला नेम? वही हमारा मोक्ष है. मोक्ष समझते हो ना, एंड वही है. तो वो वहां पर पहुंच जाने का मतलब तुम्हें सब आता है. धीरे धीरे वहां तक पहुंच रहे हैं. हो गया बेटा? कॉपी कर लिया सबने? सर लोकेंट ऑफ नो सर, एक एक करके बोलिए. यस बेटा. सर लोकेंट ऑफ PS कैसे निकाला? O3 लोकेंट कैसे लिखे हमने? इसमें ये सब मैं आपको सब लिखाऊंगा. अभी खाली ये बता रहा हूँ, क्या तुम देख पा रहे हो कि इस नाम में लोकेंट भी है, प्रीफिक्स भी है ना? 5 क्यों है? इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. लेकिन क्या तुम ये फीलिंग्स ले पा रहे हो कि हाँ 5 लोकेंट है और हमको दिख रहा है यहाँ? नो सर, नहीं समझा. मतलब हाँ, बस इतना ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ह्यूमन के पास 2 हैंड्स हैं, शोल्डर से क्यों कनेक्टेड है, वो सब डिफरेंट क्वेश्चन है. क्या तुम 2 हैंड्स को देख पा रहे हो? बस यस तो कहानी वही खत्म हो जाती है. पेशेंस रखना है. नेम के रूल्स लंबे लंबे हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं बेटा. क्या इतना हो गया? तो सर CH CH2 COOH इस साइड चेन और क्या? कौन सी साइड चेन होगी? मींस आपने लिखा ना 3, मतलब 3 लोकेंट ऑफ प्राइमरी सफिक्स है. तो प्राइमरी सफिक्स कौन सा है उसमें? प्राइमरी सफिक्स बेटा मतलब होता है डबल बॉन्ड. प्रीफिक्स नहीं हो, डबल बॉन्ड. प्राइमरी सफिक्स का डेफिनेशन देखो क्या लिखा है. विच इंडिकेट्स सैचुरेशन और अनसैचुरेशन. तो जो ANE है वो सैचुरेशन जब होगा, यानी सब जगह सिंगल आएगा तो यहाँ ANE लिख जाता.
अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो ENE लिखेंगे, कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तो YNE लिख देंगे, ऐसा है। ठीक है, इतना परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा मेरे को फास्ट पेस में जाने दो, तो तुमको रूल्स जब मिल जाएंगे सारे तो तुमको सब क्लैरिटी होगी। लेकिन अगर फंसे रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पेशेंस रखना है। और जो मैं तुम्हें वर्ड्स टू वर्ड लिखा रहा हूँ, क्या तुम वो रिलेट कर पा रहे हो? मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि तुमको फंक्शनल ग्रुप निकालना आ जाना चाहिए, मैं कहाँ ये कह रहा हूँ कि तुम्हें नंबरिंग लिखनी आ जानी चाहिए, मैं कहाँ ये कह रहा हूँ कि तुम्हें ये पता चल जाना चाहिए डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे होगा कि फोर्थ पोजीशन पे होगा। मैं तो खाली बता रहा हूँ कि मैंने ये नाम रैंडमली लिख दिया है और तुम्हें समझा रहा हूँ कि बेटा देखो यहाँ लुकेंट है ना, तुम बोलो हाँ। मैं कह रहा हूँ देखो यहाँ नाइट्रो दिख रहा है विच इज प्रीफिक्स, तुम बोलो हाँ। फिर मैं कहूंगा देखो तुम्हें रूट वर्ड दिख रहा है X, तुम बोलोगे हाँ। ये इसका मतलब ये है कि तुम केवल ये पता कर पा रहे हो कि हाँ किसी IUPAC नेम में वो 4 पार्ट्स हैं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं तुम्हें आना चाहिए। इज इट क्लियर? Yes, sir. Sir, तो वो EN is primary suffix and oic acid is secondary suffix, sir. यस, हो गया। अच्छा ये तुमने एकदम बकवास सा क्वेश्चन पूछा, बताओ क्यों मैं बकवास कह रहा हूँ? जब यहाँ पर लिखा है तो व्हाई आर यू आस्किंग अननेसेसरी क्वेश्चन? क्लियरली यहाँ लिखा है, क्लियरली यहाँ लिखा है। ये तो भाई तुम मॉल में जा रहे हो और वहां पर डायरेक्शन भी दिखा है कि भाई इस तरफ टॉयलेट है, तुम लोगों से पूछ रहे हो इधर जाना है क्या? ये तो कॉमन है, सामने लिखा है, अननेसेसरी क्वेश्चंस यू आर आस्किंग। क्या आगे बढ़े? यस क्या सर। यहीं पर थोड़ा वेट करना है? सर आगे बढ़े। तो अवॉइड आस्किंग अननेसेसरी क्वेश्चंस, थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाइए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब एक काम ये करना है बेटा कि जैसे आप कोई भी कंपाउंड पिक करते हो, है ना, CH3। अब हम वापस अपने उन्हीं 3-4 रूल्स पे आते हैं जो थोड़ी देर पहले तुमने लिखे। ध्यान से देखो, इस कंपाउंड को आप ध्यान से देखिए बेटा। क्या तुम सिलेक्ट कर सकते हो बेटा कि यहाँ पर पेरेंट चेन कितने कार्बन एटम्स की होगी? 4 कार्बन Four एटम्स atoms. और लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे। चलो इतना आपको अब आता है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज होती है डिसाइड रूट वर्ड। तो बताइए बेटा रूट वर्ड इसका क्या होगा? ब्यूट 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 Butte. तो सबसे पहले आप लिखो ब्यूट, ब्यूट लिख दिया। फिर देन चेक डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन पेरेंट चेन। क्या तुम्हें डबल ट्रिपल दिख रही है? नहीं। नो सर। इफ नो देन राइट ANE। क्या तुम विजुलाइज कर रहे हो कि मैंने ANE क्यों लिखा? यस सर। देन चेक एनी फंक्शनल ग्रुप। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? No, sir. नो। ये तो हमने नो सेकेंडरी सफिक्स। अभी उसके लिए तो रूल भी नहीं लिखा है, लेकिन एक आइडिया तो लग गया ना, सेकेंडरी सफिक्स नहीं लिखने वाले हम आगे। इतना सबको क्लियर है बेटा? सर इतना क्लियर है क्या? पहले ही डाउट भूल दिया। अरे भाई मैंने कहा I said there is no functional group, no secondary suffix. Is it clear? यस सर। हाँ, अब मुझे पूरा फिनिश करने दो, फिर आप क्वेश्चन रेज करो। हो सकता है तुम जो पूछने वाले मैं ऐसे ही बता दूं। यस सर। नाउ लिसन, अब इसमें क्या चीज बच गई है बेटा? हमने कहीं पर भी अभी प्रीफिक्सेस यूज नहीं किए, लिखे नहीं, और प्रीफिक्स यहाँ अवेलेबल है नाइट्रो। क्या बता सकते हो किस पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन। सर सेकंड। तो हम लोग उसको ब्यूट से पहले लिखेंगे, यानी इसका नाम पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा? Nitrobutane. बस ये इसका नाम है। अब आप अपनी क्वेरी पूछो। सर हम नंबर हमेशा पहले लिखते हैं नाइट्रो से, या वी कैन राइट नाइट्रो टू ब्यूटेन आल्सो।
नहीं, 2 नाइट्रो 3 नाइट्रो वो हमेशा पहले आएगा, इसीलिए तो एक एग्जांपल तुम्हें लेके दिखाया मैंने इस तरह से, उससे भी आप कॉमन सेंस ले सकते हो। इसको कॉपी कर लो बेटा। सर और आगे हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे ना, मतलब यस डेफिनेटली, लेकिन पहले नहीं पढ़ सकते ना, डिफिकल्ट हो जाएगा वो तुम्हारे लिए। लिख लिया सबने? सर अगर 2 नाइट्रो ब्यूटेन के आगे आता तो क्या केस होता, मतलब क्यों आ गया था? मतलब समझा नहीं, तुम क्या ये जानना चाहते हो ब्यूटेन के आगे और क्या लिखेंगे, ये जानना चाहते हो? सर वो 2 नाइट्रो भी पीछे आ रहा है ना, तो 2 नाइट्रो उसको पीछे नहीं बोलते हैं, प्रीफिक्स यानी पहले हाँ। लिखा है ये बोलते हैं। हाँ सर, तो वो आगे कब आता? आगे कभी नहीं आएगा, वो हमेशा प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स होगा। नाम में लिखा है ना प्री, प्री मतलब उसको पहले ही लिखना है। ठीक है सर, समझा। सर नाइट्रो तो नाइट्रोजन ना? क्या बेटा? सर और कैप्स लेटर्स और डैशेस का कुछ इतना उसका टेंशन नहीं लेना है, वो तुम्हें इसका कोई ऐसा डिफरेंस पता नहीं चलेगा। नॉर्मल इंग्लिश रूल है, जो पहला लेटर होगा उसको कैपिटल लिख देते और कुछ नहीं है, ठीक है? ओके सर। शुड आई रिमूव दिस? one यहाँ कोई गैप नहीं होगा, यहाँ कोई गैप नहीं। इसको हटा दें बेटा, सबने लिख लिया? one second sir. लेट मी नो। Sir, हटाना है? सर एस एस है सब्स्टिट्यूट ना? सेकेंडरी सफिक्स। अच्छा okay. sir, what is FS? प्राइमरी सफिक्स। नहीं नहीं, ये एफएस नहीं है बेटा, ये एफजी था। एफएस नहीं, वो पीएस प्राइमरी सफिक्स, एफजी मतलब फंक्शनल ग्रुप। सर आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड कि ओपन आपने 4 रूल दिए, वो कब यूज करना है? वो 4 दिए दिए ना, आयोपिक नेम के लोकेंट प्रीफिक्स, वो कब यूज करना है? एग्जाम्पल आएगा तो समझते चलोगे भाई। इसमें तुम्हारा सिंपल सा था, इतनी चेन है, चेन यूज की। अब बताओ इसमें कोई रूल तुमको प्रॉब्लम ट्रबल क्रिएट कर रहा है क्या? यहाँ क्या तुम ये समझ नहीं पाया कि 4 कार्बन की चेन है? क्या तुम्हें 5 कार्बन की चेन नजर आ रही है? सर वो समझा, मतलब वो आयोपिक नेम का वो कब यूज करने का रूल वो नहीं समझ रहा। बस आएगा ना, आप इतना भाग क्यों रहे हो? अभी मैं भागना शुरू कर दूंगा तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे उसको बेटा। मैं तुम्हारे लिए तो स्लो जा रहा हूं। रिमूव कर दें इसको? यस सर डन। बेटा अगर तुम शायद पहले लेक्चर में एब्सेंट थे, क्या थे? मैंने कहा था केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में थिंग्स आर लिंक्ड विद ईच अदर। तो जब लिंक्ड होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो चीज पहले पढ़ाई जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल सेपरेट है, वो कनेक्टेड है आगे आने वाली चीजों से। तो कई बार इनिशियल फेज में ऐसा लगेगा कि अरे ये क्यों दिया है, या इसका दूसरा फॉर्म क्या है, इसके आगे और क्या है, वो क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली आएगी, क्योंकि वो सेपरेट थिंग नहीं है। समझ में आया? जैसे मैंने फंक्शनल ग्रुप अभी लिख दिया, लेकिन उसके बारे में बताया कुछ नहीं है, क्योंकि वो आगे आने वाला है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली वो चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो अब मैं तुम्हें वही वाला एग्जाम्पल देता हूं जो थोड़ी देर पहले हमने ये डिसाइड किया था कि उसमें नंबरिंग कैसे करें। ये एग्जाम्पल था, इसको सिंप्लीफाई करके लिखा था और कुछ नहीं है डिफरेंस। ये बताइए बेटा, इसमें मेन चेन कितने कार्बन की है? 7। और नंबरिंग कहां से की थी बेटा, याद है ना? तो बताइए 7 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखेंगे? सर हेप्ट।
किसी बच्चे को डिफिकल्टी है कि इसके नाम के लिए मैंने हेप्ट से शुरुआत क्यों की? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, यस सर। अब इसके उसमें देखो कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है मेन चेन में? नो सर। नो सर। नो। इसका मतलब ANE लिखोगे, ENE लिखोगे कि YNE? हेप्टेन। ANE. ANE, यानी कि ये रूट वर्ड हो गया, ये प्राइमरी सफिक्स। क्या कोई इसमें फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, मैंने लिस्ट दे रखी है। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं? Yes sir. और रूल भी हमने नहीं Yes, पढ़े sir. उसके लिए, जितना टेंशन। इसके बाद No, कोई no, चीज no. लिखी नहीं जाएगी। अब क्या बच गई? कहाँ की भी चीज बच गई जो लिखनी है? सब्स्टिट्यूएंट्स बच गए सर। यानी प्रीफिक्स बच गया। प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स यहाँ पर क्लोरो है, प्रीफिक्स यहाँ पर इथाइल है, प्रीफिक्स यहाँ पर मिथाइल है। Yes sir. बताइए सबसे पहले कौन लिखा जाएगा? फ्लोरो। Chloro. तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, 3 क्लोरो। उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? इथाइल। 4 ethyl. 4 इथाइल। उसके बाद क्या लिखेंगे? So 5 methyl. methyl. 5 मिथाइल। 5 मिथाइल। ये हो गया आपके प्रीफिक्स। बताइए कितना आसान है। धीरे धीरे आप एकदम कंफर्टेबल हो जाएंगे नाम लिखने में, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना है। अगर मैं खाली नाम ऐसे ही हल्का फुल्का लिखना सिखाता हूँ, उससे काम नहीं चलेगा। अब आप देखिए, यू आर एबल टू डिवाइड द होल नेम इनटू पार्ट्स, रूट वर्ड, प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। अभी सेकेंडरी सफिक्स भी पिक्चर में आएगा, लेकिन अभी वो डिफिकल्ट एग्जाम्पल उसको ले नहीं रहे हैं। इतना समझ में आ गया बेटा सबको? Yes sir. यस सर। तो कॉपी कर लो बेटा सारे बच्चे। सर अगर हमें ड्रॉ करने के लिए दिया है स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर जैसा, तो फिर हमें ऐसे ही नाम दिए जाएंगे, हेप्टेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि फिर आइसोब्यूटेन जैसे भी नाम दिए जाएंगे? वैसे भी नाम दिए जाएंगे। हाँ, वैसे भी नाम आएंगे, कुछ भी दिया हो आपने। अरे कुछ भी हो, जो भी सिलेबस में है, कुछ भी आएगा, यू विल बी एबल टू राइट दिस। ओके सर। ओके सर। तुम्हारी क्वेरी केवल क्या होनी चाहिए कि सर स्ट्रक्चर देगा नेम, नेम देगा स्ट्रक्चर। तुम आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन ये बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही आएंगे अभी चीजें सारी। डन बेटा, हटा दें इसको। यस सर। Yes sir. तो सर अगर MCQs का क्वेश्चन लेके देखें तो हमें ऑप्शंस में ये भी आ सकते हैं ना, स्ट्रक्चर्स, और पूछ सकते हो क्वेश्चन उस पे। मैं समझा नहीं तुम्हारी क्वेरी। शायद तुम ये पूछ रहे हो कि स्ट्रक्चर दिया होगा, नेम पूछेगा यस या सर, नेम? 4 स्ट्रक्चर दिए होंगे और हाँ। उसमें ऐसा नाम दिया होगा और हमें उसमें से एक चूज करना है कि इसका स्ट्रक्चर कौन सा करेक्ट है। हाँ बिल्कुल, वो दे सकता है। गॉट इट सर। ऐसे ही तो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, और कैसे आएंगे। चलो, अब आप इसमें नेक्स्ट रूल लिखिएगा बेटा, लिखिएगा। सर दिस वाज रूल 5 ना? कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं मालूम कौन सा नंबर चल रहा है। आप नंबर कोई भी जो तुम्हारे सीक्वेंस में उसमें डाल दो। कोई तुम्हें बोर्ड एग्जाम में थोड़ी नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द फिफ्थ रूल। 5 है। वो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, मेरे लिए कॉन्सेप्ट मैटर। इट इज अ रूल ना? यस, आई एम टेलिंग यू न्यू रूल। ओके ओके। लिखिएगा, इन केस ऑफ unsaturated aliphatic hydrocarbons, in case of unsaturated aliphatic hydrocarbons, the parent chain should include maximum number of
double and triple bonds. Maximum number of double and triple bonds. Even if it is not the actual longest chain. Even if it is not the actual longest chain. Yeah, beta. So can you just repeat once? कोई repeat करेगा बेटा इसके लिए? In case of unsaturated aliphatic hydrocarbon, the parent chain should include maximum number of double and triple bonds, even if it is not the actual longest chain. Yeah, बेटा. Lowest number, continuation में same rule है. Lowest number is given to the carbon, lowest possible number. Lowest number नहीं, lowest possible number. Lowest possible number is given to the carbon linked to double or triple bond. Lowest possible number is given to the carbon linked to double or triple bond. Clear बेटा? Can you please repeat last sentence? Lowest possible number is given to the carbon linked to double or triple bond. Guys, look at the screen. सर एलिफैटिक की स्पेलिंग क्या है? कोई बताएगा बेटा इसको? पहले लेक्चर में क्लासिफाई करवाए थे कंपाउंड्स. ALIPHATIC. गाइस, कोई मुझे देख के बता सकता है इसमें कि फर्स्ट चेन को आप मेन चेन लोगे, सेकंड को लोगे या थर्ड को लोगे पेरेंट चेन? किसको लोगे पेरेंट चेन? थर्ड वन. सबको क्लियर है ना बेटा? और ये चीज हाईलाइट कर लेना कि लॉन्गेस्ट चेन अगर आप सोचोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट चेन है. बट आपको कौन सी लेनी है? 1 2 3 4 5 6 7. इवन इफ 7 कार्बन एटम्स इन द चेन, बट किस वजह से ले रहे हो? कोई रीजन बताएगा? ड्यू टू डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. डबल बॉन्ड, सॉरी. मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल ट्रिपल, ये वाला रूल हिट करता है यहाँ. इसको लिख लो बेटा. सर वो सब्स्टिट्यूएंट्स वाला भी रूल रिजेक्ट हो जाएगा फिर? यस, यानी कि ये रूल आ गया तो वो रूल रिजेक्ट हो जाएगा. इसीलिए वहां पर हमने तभी लिखा कि वहां पर जब डबल ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा. अब आपको क्लैरिटी आ रही होगी. क्यों? क्योंकि अब चीजें आगे बढ़ रही हैं. सब लिंक्ड जरूर है, लेकिन जैसे जैसे आप लिखते जाओगे रूल्स, पुराने रूल्स भी क्लियर होते चले जाएं. और सर काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं ना? उस पे आते. इतना पहले समझ में आ गया? लिख लिया सबने? इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया. इतना लिख लेना है बस. आगे बढ़े. हो गया बेटा? कुछ इन्फॉर्म तो करो मुझे, तभी तो आगे बढ़ेंगे. यस सर, डन. अब इसमें आते हैं नंबरिंग के लिए. तो हम लोगों ने क्या लिखा है बेटा? लोएस्ट नंबर पॉसिबल किसको देंगे? उस कार्बन को जिसके पास डबल बॉन्ड है.
तो लेकिन नंबरिंग एंड से एंड होगी। यहाँ पर से शुरू करेंगे तो 1 2 मिलेगा, यहाँ से शुरू किया तो क्या मिला बेटा 1 2, यानी इक्वल मिल गया। अब आते हैं, अगर वो इक्वल है तो सब्स्टिट्यूएंट्स को देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो नंबरिंग किधर से करेंगे बेटा, बोलो फटाफट। एनी साइड। एनी साइड, यही सुनना था मुझे, वेरी गुड बेटा। चलो ये भी आप हाईलाइट कर लो बेटा। सर ये वाले सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलेंगे? इसमें Cl भी है और 4 सब बताऊंगा, कार्बन भी सब है। बताऊंगा, सब बताऊंगा। चलिए जितना बताया है वो समझ में आया, दैट मैटर्स। आगे बताया ही नहीं तो उस पर क्यों परेशान हो। मैं खुद लिखूंगा इसका नाम, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने लिखा है, फिर क्वेश्चंस दूंगा तो तुम दिमाग लगा लेना। ये हो गया। Sir, why did you name? Sir, Why did you what? why did you name from the left side? Numbering you are saying basically. I'm Yeah, not sorry, saying number. you I'm not saying you write numbers from here. You can select from here, but if you do that 1 2 3 4, here also 1 2 3 4, substituents fourth position पे आ रहा है। उससे पहले हमने क्या चेक किया था, डबल बॉन्ड 1 2 1 2, इक्वल है, आइडेंटिकल है, तो सिलेक्ट एनी साइड, देयर इज नो झगड़ा। Is it clear to everyone? Should I remove this page? Yes, sir. नेक्स्ट रूल लिखिएगा बेटा, इसका नाम लिखने से पहले वो रूल लिखिए। इफ कंपाउंड कंटेन्स, या मैं ऐसा बोलूं, इफ पेरेंट चेन कंटेन्स, So this is rule 6, right? रूल 6 करो। इफ पेरेंट चेन कंटेन्स, if parent chain contains 2 or more double bonds, if parent chain contains 2 or more double bonds and triple bonds, 2 or more double bonds and triple bonds, then we add, look at the screen, A to root word. क्या तुम सब देखकर बता सकते हो 7 कार्बन एटम्स का रूट वर्ड यहाँ क्या होना चाहिए? सर कैन यू रिपीट? हेप्ट। हेप्ट, लेकिन ए एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो बताओ रूट वर्ड क्या हो जाएगा? हेप्टा। हेप्टा, फैंटास्टिक, हेप्टा, ये होगा रूट वर्ड अगर 2 या 3 या 4 डबल बॉन्ड्स आ गए। इसके बाद इनकी पोजीशनिंग क्या है बेटा? सेकेंड पोजीशन एंड फिफ्थ। क्या सारे बच्चे देख पा रहे हैं सेकेंड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिल पा रहा था हमें? तो हम लोग लिखेंगे 2,5, और सिंस 2 डबल बॉन्ड्स हैं इसलिए डाईईन। क्या ये चीजें आप समझ पाए बेटा? इज इट क्लियर? 3,6 पे डबल बॉन्ड लिख सकते हो अपन? नहीं बेटा, जो पहला आया उसको ही माना जाता है, ठीक है? सर यस यस, 2,5 है ना, हाँ वो लोकेंट हो जाएगा ना पीएस का? हाँ बिल्कुल सही, परफेक्ट। क्लियर है ये? किसी और को कोई कंफ्यूजन है बेटा इतना लिखने में? सर वो डाइन के लिए आप फोर्थ रूल यूज कर रहे हो ना, सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स, वो वाला। ये क्या आप पूछ रहा, कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या इसको? एनीवन? बेटा तुम्हारा क्वेश्चन समझ में नहीं आया शायद किसी को, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। सर मैं पूछ रहा हूँ वो जो डाइन है आप उसके लिए फोर्थ रूल यूज कर रहे हो ना, लाइक अगर 2 सिमिलर थिंग्स हो गए तो उन पे नंबर के साथ हाँ, वो कॉमन सेंस समझ लो बेटा, इतना क्या उसमें रूल वाइज घुसना है। ये तो कॉमन सेंस समझ में आ रहा है ना, 2 इसलिए डाई लगा दिए, 3 होते तो ट्राई लगा देते, उसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े।
सर इसमें अपन सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स लिखेंगे ना, अभी मेरे को आगे बढ़ने तो जितना मैंने समझाया यस बोलो तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा कि सर आप आगे बढ़िए, आगे नाम लिखिए, आप इसका कंप्लीट करिए। अब आप चुपचाप रहिएगा, ध्यान से सुनिए, आप डिस्टर्ब नहीं करना। सर अब आते हैं सब्स्टिट्यूएंट की बारी, इसको ध्यान से देखो बेटा, ये सब बिल्कुल सही है। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, इसको हम लोग एक कॉम्प्लेक्स एल्काइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? कॉम्प्लेक्स एल्काइल। और इसमें हम लोग आगे लिख देंगे हाउ टू नेम कॉम्प्लेक्स एल्काइल। क्या हम लोगों को लर्न करना है बेटा? हाउ टू नेम complex alkyl. What is complex alkyl? Branches are there. Branches or substituents are attached to alkyl. मतलब एल्काइल अपने आप में एक ब्रांच है, एक साइड चेन है, उसके अंदर भी ब्रांचेस आ गई, सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए। That is why the alkyl is called complex alkyl. क्या आप सब मेरी बात समझ पाए बेटा? यस सर। ठीक है, सो ये डेफिनेशन हो गई एक कॉम्प्लेक्स एल्काइल का। जैसे मैं तुमको दिखाता हूं, CH3 CH2 CH2 CH2, ये एक सिंपल एल्काइल है जो कहीं ना कहीं पेरेंट चेन से कनेक्टेड होगी, पेरेंट चेन। इसको हम सिंपली बोलेंगे ब्यूटाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको बोलने में। मेरी बात समझ में आई? लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिख, एक दूसरी चेन बना रहा हूं, ध्यान से देखो, CH3 CH2 CH CH3 CH2 और इसको यहाँ पेरेंट चेन से कनेक्ट कर दिया। क्या तुम इसको भी ब्यूटाइल या पेंटाइल बोल सकते हो? आंसर है नो, बिकॉज इट इज नॉट सिंपल एल्काइल। इसमें एल्काइल के अंदर भी एक ब्रांच आ गई। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं कॉम्प्लेक्स एल्काइल है क्या, मैं क्या बताना चाहता हूँ? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Now listen carefully. Very, very special point. How to name complex alkyl में the carbon atom which is directly connected with parent chain will get number 1 or 1 dash. बताओ 1 dash क्यों मैं बोल रहा हूँ, सीधे 1 confidently क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि 1 is for parent chain. हाँ, क्योंकि पेरेंट चेन में हमने 1 2 3 कहीं ना कहीं की होगी, और हो सकता है ये कोई 5th कार्बन हो, जरूरी नहीं 5th, तो कोई भी कार्बन मान लेते हैं ऐसी 5th वन है। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट यू चेक कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद पेरेंट चेन, उसको 1 डैश बोल दो, फिर वहां से शुरू करो और एल्काइल का लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करो। क्या तुम देख पा रहे हो बेटा, मैंने सही लिखा है? इज इट क्लियर बेटा? यस सर। इस कॉम्प्लेक्स एल्काइल में कोई इसकी हेल्प करेगा? बेटा एक दूसरे की हेल्प करोगे, तुम्हारा भी ब्रेन ग्रो करेगा। Sir, but what did he say? Can you repeat your question, beta? Which carbon do we have to mark as 1 dash? The carbon which is directly attached to the parent chain. Oh. चलो अब वापस इधर आते हैं। इसका मतलब है 4 कार्बन एटम्स की चेन है कॉम्प्लेक्स एल्काइल की, ठीक, और सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा है बेटा, मिथाइल। तो इसका तुरंत नाम आप लिख दोगे। बताइए ये ब्यूटाइल क्यों आया बेटा? Why this? Sir, because 4 carbon atoms. 4 carbon atoms. Butyl, can you tell me? And why this methyl? Sir, because methyl was with a branch chain connected to the butyl. It was not in the main alkyl
the chain. Everyone. So your voice is breaking. I'm not saying anything, but I said सर कुछ नहीं सुनाई दे रहा. with this. एक note लिखा दूं मैं. So what have you written under branches? Substitute. Below that, not beside that. And attached to the alkyl. And attached to Should I tell you the note? Sure. I think there is communication gap. आप ठीक से सर आप respond नहीं करते. बोल रहे ना तो मतलब आपकी आवाज चली जाती है. नेटवर्क फुल है बेटा, मैं बोल ही नहीं रहा था अभी तक, क्योंकि आपका वेट कर रहा हूं मैं कि आप बोलेंगे सर इट्स कंप्लीट नाउ. यस सर, नोट हो गया. हाँ ये तो. Sir, can you show the previous slide for a second? To write name of complex alkyl. your voice again just. सर आपकी यस सर, अभी आपकी आपकी वॉइस आवाज क्रैक हो बंद हो रही गई. है. He Your was voice. dictating the note, right? Yeah, sir, was it? क्या मैंने जो अभी बोला है वो नोट आपको सुनाई देना शुरू नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ सर, आप लिख दो ना स्क्रीन पे ऐसे. बेटा वो नेटवर्क अगर जाएगा ना तो स्क्रीन भी चली जाएगी, वो लिखने का कोई फायदा नहीं होगा. तो अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो क्लियरली ठीक है, मैं दोबारा बोल दूंगा उसको. लेकिन अगर इसीलिए कम्युनिकेशन करना है, आप साइलेंट मोड में चले जाते हैं. मैं कहता हूँ कम से कम 5-10 बच्चे तो बोलना शुरू करें कि यस वी हैव डन दिस, नाउ यू स्टार्ट दिस. कुछ बोले, कुछ क्वेश्चंस पूछे, कुछ आंसर करें, तो वो कंटिन्यू रहता है. आप अपनी तरफ से बोलना बंद कर देते हो, फिर खत्म हो जाता है वो. ठीक है सर, आप अभी जो आपने जो कोई नोट ऐसे दिया वो बच्चे हैं जिनको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, नेटवर्क मेरा फुल दिखाई दे रहा है. और आप अगर बोलोगे एक भी बच्चा जिसका नेटवर्क खराब है वो डोमिनेट करके बोल देगा कि नेट नहीं आ रहा है, तो भी समझ में नहीं आएगा मुझे. Now it's clear. Previously it was breaking a lot. Yes, sir. Like while you were speaking, some words were not able, were like missing out, and then. यस सर, लाइक आवाज चली जा रही थी तो सुनाई नहीं दे रहा कोई था. नोट लिखेगा. To write name of complex alkyl. To write name of complex alkyl. To write name of complex alkyl. First decide the carbon which is directly connected with parent chain. First decide the carbon which is directly connected with parent chain. First decide the carbon which is directly connected with parent chain.
Yes, sir. Yes. Clear? Then from that carbon, select the longest chain within the complex alkyl. So can you please repeat? From that carbon, select the longest chain within the complex alkyl. Example is here. ठीक, इसको highlight कर लो कि this is the carbon which is directly connected with parent chain. So from here we have selected the longest chain within the complex alkyl. ठीक, and accordingly name will be written. बस, that is done. Accordingly name will be written. सबसे important point है the carbon which is directly connected with parent chain. ठीक है? सर आप नेम का Yes, एक और sir. बार बता सकते हो, मिथाइल ब्यूटाइल कैसे आया? कोई explain करेगा बेटा? Anyone? Longest carbon chain has 4 carbon atoms, so butyl, and there is a CH3 in the substituent, so methyl. ओके, थैंक यू. हो गया बेटा, इसको हटा दें अभी. सर मुझे एक क्वेश्चन था. बोलो. सर आपने वो जो लिखाया था CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स अल्काइल पूरा स्ट्रक्चर है, या फिर जो फोर्थ पोजीशन पे जो था CH2 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 Cl वो कॉम्प्लेक्स अल्काइल है? वो कॉम्प्लेक्स है. कंपाउंड एल्काइल नहीं होता है. एल्काइल एक सब्स्टिट्यूएंट होता है, प्रीफिक्स होता है, कंपाउंड नहीं. यहाँ पर हम लोग प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं, इसे तो पीसी बगल में बना रखी है मैंने. तो फिर तो उसका नाम कंप्लीट नहीं है ना, जो कंपाउंड ऊपर लिखा था. नहीं, अभी उस पर पहुंचेंगे ना हम लोग. देखो जाने ही वाले हैं. सर यहाँ पर आ गए हम लोग. सब लोग देख पा रहे हैं कंपाउंड को? कैन यू सी कंपाउंड? वापस आ गए उसी जगह. आप देखो, क्या तुम बता सकते हो इसमें पहला कार्बन कौन सा लेंगे इस कॉम्प्लेक्स एल्काइल का नेम करने के लिए? टॉप वाला. The top one. सर जो पोजीशन 4 पे वो? नहीं, ये वाला. द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद पेरेंट चेन. तो बताइए इसके लिए नाम क्या लिखोगे? तुरंत बोलिए. ब्यूटाइल. क्लोरोपेंटाइल. नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी. 4 डैश क्लोरो ब्यूटाइल. ब्यूटाइल. और इसको ब्रैकेट में, यानी कभी भी कॉम्प्लेक्स एल्काइल जब लिखेंगे उसको ब्रैकेट में डालेंगे. ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि अंदर का सबस्टिट, अंदर का लोकेंट बाहर के लोकेंट से मिसमैच ना हो जाए. पूरी की पूरी एल्काइल ग्रुप किसके साथ कनेक्टेड है? 5 के साथ. तो यहाँ 5 लिख देंगे. तो बताओ यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या लिखे? ब्रैकेट में तो नाम हो गया, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखे? 4. बस, दिस इज द फुल नेम ऑफ कंपाउंड. जो ये था. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर बोला बाहर 4 क्यों लिखा? क्या बेटा? वो एकदम बाहर 4 क्यों लिखा? ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि इस कार्बन के साथ पूरी की पूरी ये कॉम्प्लेक्स एल्काइल जुड़ी हुई है. दैट इज 4th कार्बन. सर और हम कभी भी अल्काइल लिखते हैं तो एंड में वायल लिखते हैं ना, एन की जगह? हाँ. अच्छा, ओके. सर अगर कोई भी साइड चेन में सब्स्टिट्यूएंट नहीं हुआ तो वो सिंपल अल्काइल हो जाएगा ना, और सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो कॉम्प्लेक्स अल्काइल हो जाएगा ना? हाँ, ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट्स विद इन द एल्काइल नहीं होगा तो सिंपल. Sir, numbering we have to start from the carbon directly attached to parent chain. Yes. In the complex alkyl. For complex alkyl. Yes. Okay, sir. तो सर इसमें अपन को क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है वो कनेक्टेड ब्रांच में नहीं है तो भी अपन उसको कॉम्प्लेक्स अल्काइल बोलेंगे ना? हाँ, मतलब वैसे लिख दिया हमने. नहीं भी लिखेगा तभी भी वही हो जाएगा. मतलब करना आना चाहिए. अगर तुम्हें नहीं आता तो रूल फॉलो करो. डायरेक्टली सोच पाते तो बहुत अच्छी बात.
मतलब मैंने तुम्हें डायरेक्टली केवल क्लोरो ब्यूटाइल बोल सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें रूल्स वगैरह सब लिखा दिए, इससे भी डिफिकल्ट आया तो भी कैसे डील करें। सो आई टोल्ड यू एवरीथिंग। और ये तो आसान वाला केस है, अगर ना भी मैं बताता तू भी क्लोरो ब्यूटाइल करके लिख के काम चला देते। ठीक है, Yes. Shall I remove this बेटा? सबने लिख लिया? One second, sir. सर अपन इसको पीछे लिखेंगे नहीं ना, आगे लिखना है ना हमेशा इसको, जो ब्रैकेट में लिखा अपन ने। हाँ, प्रीफिक्स है ना, आगे ही यार। Should I remove this page बेटा? Yes, sir. इसका नाम लिखिएगा। Little difficult, huh? But try. So in the complex alkyl, what are the substituents? Not clear. It's CH2, CH3. It's not clear. Where? This is CH2, CH3. This is CH, CH2, CH2, CH3. Here, CH3, CH3. Okay, sir. सर मैं आंसर दूं? आप चैट बॉक्स में डालो ना। Very good, बेटा। Very good. Hassan, very good. Ahmad, very good. Sir, was my correct? Very good does not mean correct. I'll discuss. Okay. Correct, incorrect अभी नहीं बताऊंगा। Sorry. ठीक है। For me, it is more important that you are participating. So every time if you share your answer,
I will appreciate. Sir, can we fuse those CH2 and CH3 together? Yes, you have to do that. Otherwise, how will you write name? Should I write, beta? Have you all tried? Sir, I'm sending my answer. Wait. Very good, Daksh. Vedant, very good. कुछ नाम ऊपर चले गए. I'm not able to see that. Now, should I discuss? Yes, sir. Guys, here the difficulty is not in selecting the main chain, parent chain. मेरे ख्याल से हर एक बच्चे ने ये डिसाइड कर लिया होगा कि ये पेरेंट चेन है. इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी बेटा? No, sir. No. अब इसमें नंबरिंग भी सब बच्चों ने डिसाइड कर लिया होगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना? Yes, इसमें sir. भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी बिकॉज लेफ्ट साइड से डबल बॉन्ड क्लोज आ रहा है. राइट साइड से जाओगे तो डबल बॉन्ड विल बी एट थर्ड पोजीशन. सो वी विल प्रेफर लेफ्ट हैंड साइड. तो ये परफेक्ट हो गया. यानी नेम तो अपने को मालूम है. इसमें 8 कार्बन एटम है तो हम लोग लिखेंगे ऑक्ट या ऑक्टा बेटा? ऑक्टा. ऑक्टा लिखेंगे बिकॉज यू हैव 2 डबल बॉन्ड. सो 2 और मोर डबल बॉन्ड्स पे एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है. तो ये हमारे लिए रूट वर्ड हो गया. नाउ इसके बाद क्या लिखे बेटा? 2 5 9. आई थिंक ये सबको क्लियर होगा है ना? ये हमारे लिए प्राइमरी सफिक्स वाली चीज हो गई. अब प्रीफिक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स एल्काइल है. कैन यू सी? Complex alkyl. And how do we start numbering of complex alkyl beta? From which carbon do we start? So the one attached to the parent. That means ये green color सब लोग देख पा रहे हैं बेटा. इसको 1 dash कर लेंगे. Now you'll move this side, left side, right side और ये down. किधर जाओगे? Down. Sir, down. 2 dash, 3 dash. अच्छा 3 dash इस तरफ तो नहीं जाना है, नीचे जाना है. Yes. Yes. Because नीचे Yes, ज्यादा sir. कार्बन मिलेंगे. इसका मतलब है ये तो डेफिनेटली पेंटाइल हो गया. और पेंटाइल के अपने प्रीफिक्सेस है. मिथाइल है और एक इथाइल है. कैन यू सी? दिस इज इथाइल. इथाइल इज एट व्हाट कार्बन? सेकंड कार्बन. मिथाइल एट व्हाट कार्बन? फर्स्ट कार्बन. तो कैन यू सी? मैं यहाँ लिखूंगा 2 डैश इथाइल और 2 मिथाइल हैं. तो 2 मिथाइल सेपरेटली लिखोगे या डाई करके लिखोगे बेटा? सर सेपरेट. नो. अरे मतलब 1 1 उसका सेपरेट होगा. हाँ लोकेंट्स उसको ऐसे लिखने, लेकिन लिखने डाई है. तो यहाँ पर लिख दो, उसको ऐड कर दो केवल, और कुछ नहीं है डिफिकल्टी इसमें. 2 डैश इथाइल 1 डैश डाई मिथाइल पेंटाइल. So then whole is at 4. So we'll write होल थिंग विल बी इन द ब्रैकेट. और ब्रैकेट के बाहर क्या लगा दोगे बेटा? 4. 4. बस
आंसर। ठीक है, इसको लिख लो बेटा। सर पेरेंट चेन में अगर वो CS3 नहीं होता लास्ट में, तो फिर नंबरिंग कैसे करते अपन? पेरेंट चेन में क्या नहीं होता बेटा? अगर खाली 7 होता 7 और CS3 अपन निकाल देते एक, तो फिर नंबरिंग कैसे? तो किधर से भी करो तो सेम ही हो जाएगा ना। मैंने वो दिया होता और तुम ये पूछते तो ये बेटर क्वेश्चन। जहाँ झगड़ा नहीं है वहां की वो करेंगे हम लोग। सर लोकेंड्स 2 बार ही लिखने होते हैं ना, मतलब लोकेंड्स बेटा कितनी बार लिखे होते? लाइक जितने बार हमारा जितनी जगह पर कनेक्शन होगा उनको हर बार मेंशन करना, चाहे वो सेम हो तो तभी भी वो ज्यादा बार लिखना होगा। ओके सर। सो मिस्टेक्स करेक्ट कर ली। हाँ ठीक है, वेरी गुड। Sir, I wrote 1-1- dimethyl before ethyl. Is it wrong? 1- what? 1-1- dimethyl before ethyl. नो, इट्स बिकॉज मिथाइल का M आएगा, डाई ट्राई कंसीडर नहीं करते होता। ठीक है, सीधे सीधे मिथाइल और इथाइल का कंपटीशन होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। Sir. Should I remove this? सर इसमें 5 Sir, why did you write ethyl first? Because इथाइल का E है E है ना अल्फाबेट के लिए, इसलिए, हाँ। और मिथाइल का M। Got it. सर यस तो इसमें कॉम्प्लेक्स एल्काइल का आप नेमिंग कैसे बताएंगे? और एग्जांपल लूंगा ना बेटा, इसको हटा दें। आई एम गोइंग टू टेक दैट ओनली। एंड सर वो आपने मतलब 1- 2- 3- किया है, लास्ट क्वेश्चन में अपन ने 4- क्लोरोब्यूटल किया था ना, तो इसमें 5- नहीं लिखना अपन को। 5- में कुछ लगा ही नहीं है नीचे, ये तो पूरी कार्बन चेन है। ब्रांच यहाँ दिख रही है बेटा एक्स्ट्रा, उसको सब्स्टिट्यूएंट्स बना के लिखा। Sir, यस बेटा। sir, if we will write dimethyl before ethyl, so it will be considered as correct answer. इनकरेक्ट बेटा, अल्फाबेटिकली वहां जाएंगे। इथाइल का ई लेंगे, मिथाइल का एम लेंगे, डाई ट्राई से अल्फाबेट नहीं निकालते। Should I remove this because I have to take more cases of complex alkyl? यहाँ पर फंस कर नहीं रहना है बेटा, बहुत सारे एग्जांपल लोगे तो तुमको ज्यादा कॉमन सेंस डेवलप होगा। एक ही जगह फंसा कर उसी एग्जांपल को करते रहोगे तो फायदा नहीं है। Shall I remove this? Yes sir. Yes sir. वो आपने मतलब सर कोई क्वेश्चन पूछ रहा था। अरे वो उसी क्वेश्चन में परेशान है। मैं कह रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू टेक मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्काइल, डोंट वरी। वो उसी पे चाहता है, उस पे लटका कर रखेगा तो बाकी सारे बच्चों जिनकी सिलेक्शंस होने हैं सब रह जाएंगे। अभी मेरा टारगेट है मार्क्स मैक्सिमाइज करना, तो उसके लिए ज्यादा कॉमन सेंस डेवलप तभी होगा जब मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स वी डिस्कस। वो कह रहा है कि सर आपने यहाँ पर 4 क्लोरो लिखा है, तो फिर यहाँ पर आप 5 क्यों नहीं लिख रहे हो? 5 क्यों नहीं लिख रहे हो? कहाँ गया एग्जाम्पल ही गायब हो गया। हाँ, कह रहा है यहाँ 5- कुछ नहीं लिखा। अरे है ही नहीं तो कहाँ से लिखते हैं कुछ? वो कहना चाहता है 5- मिथाइल लिख दो। अरे वो कार्बन चेन का पार्ट है। हाँ समझा वो सर। चलो अब आप लिखिएगा मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्काइल, ऐसा करके सब हेडिंग डाल। मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्काइल। सबने बेटा डाल दिया सब हेडिंग? यस सर डाल दिया। Yes sir, please. अब इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, केसेस बनते हैं, तो वो मैं यहाँ पर कंसीडर करूंगा, आप देखते जाना। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 या फिर CH3 CH2, यहाँ पर कई पेरेंट चेन है। लेट अस से यहाँ पर 4 लिख दिया। क्या तुम इसका नाम बता सकते हो कॉम्प्लेक्स एल्काइल का तुरंत? कोई
use mic quick. Anyone? Or bracket 2-methyl propane. प्रोपेन नहीं आएगा. प्रोपाइल. और कोई अच्छे ढंग से बताए. 2-methyl प्रोपाइल. हाँ, 2-methyl प्रोपाइल. चलो, जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आया उनके लिए, फर्स्ट यू डिसाइड द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद पेरेंट चेन. यू ऑल कैन सी. इस कार्बन को कौन सा नंबर देंगे बेटा? 1-. फिर इसके बाद आप इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो. इधर जाओ या इधर जाओ, सेम मिल रहा है. कहीं भी चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ इसका नाम प्रोपाइल आएगा बिकॉज इसके पास अब 3 है. तो यहाँ प्रोपाइल आपको क्लियरली विजिबल है. नाउ सेकंड पोजीशन हैज गॉट मिथाइल, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन 2-methyl. Or whole thing will be written in a bracket because it is complex alkyl, and outside the bracket you'll write the locand which is given in the parent chain. ये अपनी मर्जी से हमने assume कर लिया है, ये हमने अभी निकाला नहीं है, ये कुछ भी लिख दिया मैंने. आप इसमें 5, 6 कुछ भी डाल दो अभी के लिए. Is it clear to everyone? कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये ना समझ में आया हो? अर्शल बेटा पूछ लो, नहीं तो बाद में फिर बड़े केसेस आएंगे, फिर तुम फंस जाओगे. Is it clear? Yes, sir. Any other student? दूसरा एग्जांपल देता हूं बेटा, ध्यान से देखो. इसका नाम कोई बता सकता है बेटा? So 7-3 आएगा और hash 2- actually. 2- या 3-? 7-3- 3- because 7 is from parent. methyl butyl. 3 हाँ 4 sir. 3 ना. कई बच्चे कंफ्यूज हुए क्योंकि इस बार मैंने क्या किया, आप नंबरिंग इधर से करोगे तो मिस्टेक हो जाएगी. मैंने क्या बोला हर बार, डिसाइड द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद पेरेंट चेन, दैट गेट्स नंबर 1-. देन यू सिलेक्ट लॉन्गेस्ट वन, 2-, 3-, 4-. Since here 4 carbon, that is why butyl, and 1 branch, that is methyl at 3rd position. Is it clear to everyone? Yes sir. सर आपने अचानक से पूरा तो कंफ्यूज हो गया. कोई नहीं, एग्जाम में अचानक से आएगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है अपने को. कुछ भी हो Sure, जाए sir. अपने को आंसर सही निकालना है. चलो नेक्स्ट पूछे. कोई बता सकता है बेटा इसका नाम? 7-2-dimethyl 7-2- propyl. 2- comma dash. Yes. Dimethyl propyl. Dimethyl propyl. वेरी गुड. तो जिन्हें बिल्कुल नहीं आया वो ध्यान से सुने. The carbon which is directly connected will get number 1-. Then select the longest one, 2-, 3-. इससे लंबा ना तो इधर मिलेगा ना ऊपर जाने पर. That is why it is propyl. And the remaining 2 methyl groups connected at second carbon, so 2-, 2- dimethyl. Anyone having any confusion? सर अगर व्हाट इफ अगर ऊपर CH3 होता है तो अपन ऊपर आते हैं 2- लेके ऊपर चले जाते, जिधर लॉन्गेस्ट मिलेगा उस तरफ आ जाएंगे. Any confusion to anyone? Is it clear बेटा? सबको समझ में आया? Yes ये sir, clear. Yes. अब तुम ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो. ये जो कॉम्प्लेक्स, ये सारे कॉम्प्लेक्स एल्काइल, बट ये मैंने जानबूझ के स्पेशल कॉम्प्लेक्स एल्काइल्स लिखे हैं. इस वाले कॉम्प्लेक्स एल्काइल का एक और नाम है विच इज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज IUPAC, बट एक कॉमन टाइप का नाम है. कॉमन मतलब किसी ने रख दिया, उसको हमें ज्यादा रूल वाइज फॉलो नहीं करना है. उसको इस वाले को कहते हैं बेटा आइसोब्यूटाइल. क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटाइल. इसको बोलते हैं आइसोपेंटाइल. इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल.
ये कुछ कॉमन नेम्स है। अब इनको गेस कैसे करें, ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। इनको गेस करें, कैसे करें। कॉम्प्लेक्स एल्काइल है, उसकी नेमिंग सबको मालूम है, अभी उस पर नहीं जा रहे। अब नई चीज जो मैंने लिखी उसको बता रहा हूँ। व्हेनेवर, या मैं ऐसा यहाँ पर लिख देता हूँ, हाउ टू डिसाइड नॉर्मल आइसो नियो। हाउ टू डिसाइड नॉर्मल आइसो नियो, बड़ा सिंपल है। जो भी कोई एल्काइल दिया है वो अगर स्ट्रेट चेन में पूरा लिखा हुआ है, पूरा स्ट्रेट चेन में, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, नॉर्मल नॉर्मल या एन। एन ब्यूट, इसको एन 5 है क्या, हाँ 5 है, तो इसको क्या बोल देंगे बेटा, नॉर्मल पेंटाइल, या फिर इसको क्या लिखेंगे, एन पेंटाइल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई भी एल्काइल उसको स्ट्रेट चेन में लिख दो, दैट इज नॉर्मल। इसी में एक कार्बन कम कर दो और उसको एक्सट्रीम एंड पे जाके सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांच लगा दो, 1 2 3, इसको बोलेंगे आइसो पेंटाइल। अब एक और कार्बन कम कर दो सीधे सीधे, और जो एक्स्ट्रा मिथाइल है उसी पोजीशन पे फिर ब्रांच कर दो, इसको बोलेंगे नियो। अब मैं थोड़ा स्लो मोशन में बताऊंगा, ध्यान से सुनना बेटा। ये तो मैंने फटाफट लिख दिया आपके लिए, अब आप ध्यान से सुनिए, पीछे जाकर जाते हैं। ब्रांच कहां देनी है, दिस इज द मेन क्वेश्चन। जो पेरेंट चेन है ना, उसके एक्सट्रीम इसमें आओ, यानी द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड उसको छोड़ दो, उसके एक्सट्रीम एंड पे आओ और सेकेंड कार्बन पे ब्रांच देनी है। जैसे यहां देखो, दिस कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड, तुमने जो है इसका लॉन्गेस्ट पूरा देखा, और सेकेंड कार्बन पे तुम्हें मिथाइल ब्रांच दिख रही है। टोटल कार्बन एटम्स 5 है, सेकेंड कार्बन इस एंड से, हाँ इस एंड से सेकेंड कार्बन पे मिथाइल दिखा, पूरी कार्बन 5 है, और सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल है, आइसोपेंटाइल। उसी सेकेंड कार्बन पे एक और ब्रांच दे दी, और टोटल कार्बन अभी 5 है, नियोपेंटाइल। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा? यस सर। सर मतलब सेकंड पे एक होगी तो आइसो, दो होगी तो नियो। एको हो रही बेटा आवाज आपकी। बाकी लोग कॉपी करो, टाइम वेस्ट नहीं करना। अदर स्टूडेंट्स कॉपियां, जिसको डाउट है वही पूछेगा। अदर स्टूडेंट्स कीप ऑन राइटिंग। Sir, यस बेटा। sir, why have you written 2 dash twice? 2 dash twice because 2 methyl groups are connected na, so for each methyl you have to mention locant. So if in parent chain on a parent chain, if there is methyl on both sides of a carbon atom, how will we write that? Do we have to take the reverse number chain or the same way we did now? I'm not getting you beta. Why are you talking about parent chain? Yes sir. Why are you talking about parent chain? It's a No, complex sir, I was alkyl, curious about separate. that. These methyls have nothing to do with the methyl attached to parent chain. Yes sir. ठीक है सर, तो अगर वो ये जो अपन का साइड चेन है उसमें सेकंड लास्ट में अगर एक ही खाली है तो आइसो आएगा ना फिर? हाँ, मतलब इसमें एक अगर मिथाइल ब्रांच दी हुई है और बाकी सब स्ट्रेट चेन में, तो उसको आइसो बोल देंगे। सबने लिख लिया बेटा? यस सर। Yes, sir. ये वाला भी कॉपी कर लो बेटा, ये वाला पार्ट भी। आज बहुत सारी थियरी हमने पढ़ी बेटा, ये सब अच्छे से आप रिवाइज करिएगा घर पर बैठकर, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएंगे। इसको भी कॉपी करिए बेटा सारे बच्चे। एक और छोटी सी चीज बताऊंगा फिर आप जाइए।
I remove this? Sir, 1 minute. सर वो रेड वाला भी कॉपी करना ना? सब कॉपी करना. Whatever written you have to copy. Sir, is this the last topic for today? No, one more thing I will tell you, then you can. Okay, sir. That is connected with ISO Neo only. Are you ready? Should I tell you? Yes, sir. Listen. यहाँ पर सारे बच्चे लिख दें. Sir, are you giving? यहाँ पर सारे बच्चे लिख दें बेटा. ISO Neo, the rule is valid till 7 car. कहाँ तक हम लेते हैं बेटा? Till 7 car. Actually में तो you are already aware of how to write name of complex alkyl. These are, you know, separate things. अब आप ध्यान से सुनो. Isooctane is a popular compound. But isooctane में बता सकते हो टोटल कार्बन कितने होंगे? Sir, 8 ना? 8. लेकिन रूल कहाँ तक वैलिड है? 7. अगर मैं तुम्हें ये लिख कर देता हूं या कहीं पर अगर ये लिखा हुआ मिले तो प्लीज नोट 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये आइसोऑक्टेन का फॉर्मूला नहीं है. प्लीज नोट. ठीक, रूल हम यूज ही नहीं करते हैं इसमें. आइसोऑक्टेन इज अ पॉपुलर कंपाउंड. ये एक्चुअली पेट्रोलियम में यूज होता है. ये बहुत अच्छा फ्यूल है. ठीक है, और इसका फॉर्मूला फिक्स्ड है, विच यू कैन नॉट चेंज. ये है इसका फॉर्मूला. तो इसको चाहे आप एक्सेप्शनल या कैसा भी करके इसको याद रखें. आपको आइसोऑक्टेन अगर एग्जाम में दिखा तो आपको केवल इसके बारे में लिखना है, ये याद रखना. एंड इट्स नेम इज 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन. नेम भी आपको लिखना आता है. नेम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये प्रीफिक्स हो गया, ये रूट वर्ड हो गया, ये प्राइमरी सफिक्स हो गया. More important, which I wanted to tell you, that don't get confused with word iso. ये एक पॉपुलर ट्रेडिशनल कंपाउंड है, इसी नाम से जाना जाता है, जिसका स्ट्रक्चर ये है. रूल वाइज स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. इसको कॉपी कर लो बेटा, देन यू कैन. So what have you written in the first chains after CH2, the last CH2? CH3, C, CH3, CH3, CH2, CH, CH3, CH3. ये तो रॉन्ग स्ट्रक्चर है. CH3, CH, CH3, CH2, 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 CH3. Okay. सर ये एक्सेप्शन होगा ना फिर? मैंने बोला ना, आप इसको एक्सेप्शनल करके लिखो या ये लिख लो कि रूल वाज स्टिल 7 कार्बन एटम. ट्रेडिशनली आइसोऑक्टेन इज दिस कंपाउंड. बस इतना करके लिख लो और कुछ नहीं. सर और आप बता सकते हैं अल्काइल क्या होता है एग्जैक्टली? क्या क्या? अल्काइल. एल्काइल तो सब्स्टिट्यूएंट है साइड चेन. ये कंपाउंड है. सर आपने फ्यूल का ये जो नाम लिखा है वो रूल से लिखा नहीं ना, आपने ऐसे रखा है ना? हाँ, जो ये रूल से नहीं लिखा गया, ये तो एग्जिस्ट जो करता है उसका नाम है. तुम्हारा नाम चिंटू है तो कोई रूल नहीं है उसका, ऐसा है. तो लाइक अल्काइल इज अल्केन जिसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया वैसे ना? हाँ, वही जो स्टार्टिंग में मैंने करवाया था, उसी को एल्काइल. सर वो उसका डेफिनेशन नहीं लिखा था इसलिए कंफ्यूज हो गया था.
तो उसमें डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं, केवल इतना लिख लो उसमें आर, ये अपने आप में डेफिनेशन है, बट आर डैश मतलब एल्काइल। Those who have copied, they can leave. Yeah? Sir. Yes, beta. सर लाइक एल्काइल इज एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, ऐसा होता है कि एल्कीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, उसको एल्कीनिल बोले। So if we are done, we can leave, right? Yes, you can. Bye, sir. और ट्रिपल बॉन्ड में से भी एक हाइड्रोजन, उसको एल्काइनिल बोले। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे। हाँ सब आएगा बेटा। अच्छा ओके ओके सर। यस सर वो एग्जांपल था ना 2' डाइमिथाइल, उसमें सर वो 2' डाइमिथाइल कैसे है वो बताएंगे एक बार खाली। यहाँ की बात कर रहे हाँ सॉरी, 2 मिथाइल सेकंड पोजीशन पे कनेक्टेड है तो 2'। मतलब दो कनेक्टर्स के अपन 2' लिखा है सर। हाँ 2 अलग अलग मिथाइल है ना, तो उनके लिए 2 अलग अलग ग्रुप है। तो सर अगर साथ में लिखे एक ही लिखा तो रॉन्ग क्यों होगा, मतलब फिर उसमें? क्योंकि ऐसा रूल बना के उन्होंने रखा हुआ है, मतलब अगर पहले कोई अथॉरिटी वाला ऐसा बना देता तुम्हारी चीज तो वो सही मान ली जाती। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय।